Okay, students. Now our next topic is equipotential surface and its different properties. As the name suggests, equipotential. That means a surface on which potential is same at every point. एक ऐसा सरफेस जिस सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो उसे हम लोग कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो a surface on which potential is same at every point is called an equipotential surface. एग्जाम्पल्स के लिए पहले भी हम लोगों ने देखा है एक चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर और चार्ज्ड स्फेरिकल सेल बिहेव करता लाइक एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. अगेन वी हैव सीन कि अगर किसी डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा ज़ीरो होता है. इट मीन्स इफ़ आई पास अ सरफेस थ्रू द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल उस प्लेन के ऊपर भी हर पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा. So a surface on which potential is same at every point is called an equipotential surface. Now we are discussing some of the properties of the equipotential surface. Properties of equipotential surface. Point number 1. As the name suggests, potential is same at every point on an equipotential surface. Point number 2. Suppose we have to move a test charge from point A to point B on an equipotential surface. See, let I have an equipotential surface. This is an equipotential surface. I have located 2 points A and B on this surface. As this surface is equipotential, I can say VA equals to VB. Means point A और point B का potential same होगा. It simply means VA minus VB that is equals to 0. Again VA minus VB can be written as WBA by Q naught, work done per unit charge in moving the charge from B to A, that is 0. That means if I move a test charge Q0 from B to A, work done in this situation is going to be 0. It means किसी भी टेस्ट चार्ज को अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के 2 पॉइंट्स के बीच मूव करवाते हैं, किसी भी टेस्ट चार्ज को अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर मूव करवाते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इन दिस सिचुएशन वर्क डन विल बी 0. सो नो वर्क इज डन इन ऑर्डर टू मूव ए टेस्ट चार्ज irrespective of its value, चाहे उस टेस्ट चार्ज का वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक टेस्ट चार्ज को हम लोगों ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाया और इस सिचुएशन में वर्क डन का वैल्यू हमेशा 0 होगा. नाउ द थर्ड पॉइंट वेर यू आर सीइंग electric field is always perpendicular to the equipotential surface. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है. व्हाट डज इट मीन्स? सी, दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. आई हैव लोकेटेड 2 points A and B on the surface and I am moving a test charge Q0 from A to B. As I have already seen,
WAB equals to 0. Again, WAB can be written as F dot dr, force or displacement का dot product, that is 0. Force acting on the test charge can be written as Q0E, where E is the electric field. मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें अभी नहीं पता, हम लोग F को लिखे हैं Q0E डॉट डी आर इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स E डॉट डी आर इक्वल्स टू 0. दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 तब होता है जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर. So dr is the displacement from A to B that is lying on the equipotential surface, and E be the electric field. As you are clearly seeing, electric field is always perpendicular to the equipotential surface. So याद रखना है, अगर हम लोग equipotential surface के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ परपेंडिकुलर ही होगा. फॉर एग्जाम्पल, सी दिस फिगर. एज यू आर सीइंग, ड्यू टू अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ड्यू टू अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज, these are representing electric field lines that are radially outward. The red lines are representing electric field lines. As equipotential surface is always perpendicular to electric field lines, it means ये जो ब्लू डॉटेड लाइंस है ये सभी लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा एक एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को. For clear pictorization, you can say, if I draw a tangent over this equipotential surface, this tangent is always perpendicular to the electric field lines at its different points. So electric field lines are always perpendicular to the equipotential surface. Now come to the point number 4. Like electric field lines, I can say two equipotential surfaces can never intersect each other. दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता. Why I am saying so? See, suppose I have two different equipotential surfaces which are intersecting at point A. फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस का पोटेंशियल है 5 वोल्ट, तो ऑब्वियसली ये पोटेंशियल स्फेरिकल सेल के अंदर हर एक पॉइंट्स पे होगा. सिमिलरली सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल है 10 वोल्ट. इट मीन्स ये पोटेंशियल भी स्फेरिकल सरफेस के हर एक पॉइंट पे होगा. नाउ ए इज ए कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर बोथ दिस स्फीयर्स. सो कैन यू से व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट पॉइंट ए? आंसर इज पॉइंट ए का पोटेंशियल ना ही 5 वोल्ट हो सकता ना ही 10 वोल्ट. इनफैक्ट कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा जो कभी पॉसिबल नहीं है. सो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. पॉइंट नंबर 5, एज वी हैव ऑब्टेन्ड the formula for electric field E equals to minus dV dr. Again, for an equipotential surface dV equals to constant. Equipotential surface के लिए अगर dV स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल मान ले तो पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट होता है. दैट मीन्स E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू dr. इसका मतलब है कि जब जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करे तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच जो डिस्टेंस है डी आर वो इंक्रीज करेगा. लिसन वंस अगेन, इफ आई गोइंग टू अ रीजियन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग देन डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल इंक्रीज. और यू कैन से if I go to a region where electric field is increasing, then distance between equipotential surfaces will
decrease. For clear clarification, let us see this figure. एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है रेडियली आउटवर्ड। अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करें तो वी आर हैविंग डिफरेंट स्फीयर्स, बट सी दिस स्फीयर्स। जिਵੇਂ हम लोग पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज कर रहा, और इस सिचुएशन में दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच डिस्टेंस कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा। सेम विल हैपन फॉर ए नेगेटिव सोर्स चार्ज।